we pray for well-being of each one of you. Your family members, we pray for the well-being of your family members. We pray for the well-being of the whole humanity. And as we were discussing, that Dev Sanskrit Vishavidyalaya is having this wonderful way of taking care of its own students, their families, because we talk about computer science, but we also love to talk about health also. So moving further in today's workshop, which will be on health awareness amidst COVID times, I would like to request Honorable HOD Ma'am to share her insights and to initiate the session further. So I would like to request Honorable HOD Dr. Rajeshwari Trivedi Ma'am to kindly share her insights on this wonderful topic, and then further we will have our trainer Dr. Naveen Pandeyji sharing his valuable words with all of us. Over to Honorable HOD Ma'am. धन्यवाद गोपाल सर। आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन सर और डियर स्टूडेंट्स, जैसे सब लोगों को आइडिया है कि हम किस सिचुएशन में आज पूरी दुनिया है, तो उसमें आज ये एक स्पेशल लेक्चर हेल्थ अवेयरनेस के लिए होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं अपने ही फैकल्टी मेंबर डॉक्टर नवीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया। और आप लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये जो सर देने वाले हैं हेल्थ टिप्स, वो आप साथ में योगा टिप्स, तो वो आपको यूजफुल होगी, ऐसी मेरी विशेष है। तो एक बार गायत्री मंत्र और फिर नवीन सर अपना सेशन शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवीन सर। I think when we start the session, I would like to share a little bit about the journey of Dr. Naveen Pandeyji. We are very fortunate to be the part of the first batch of Dev Sanskrit Vishavidyalaya, where I think in the whole planet, the kind of interdisciplinary program where you learn psychology, yoga, computer science, scientific spirituality, and life management all together. So in Dev Sanskrit Vishavidyalaya, we started that journey, and it is the beauty of Dev Sanskrit Vishavidyalaya that on one side, Dr. Naveen did his PhD in artificial neural network. So on the other side, he was a gold medalist in several national and international yoga competitions also. Right now, he is also taking care of a yoga society, Shriram Yoga Society, under which he used to conduct various national and international workshops. He has traveled across several nations and has trained a lot of people out there, and a lot of international students are always in touch with him. So he carries a lot of experience in the field of yoga also, along with computer science. So this is the beauty of this department and this university. So today, Professor of Computer Science is going to talk about a very, very important topic, yoga and health awareness. So I would like to request all the students to pay attention to it and not only grab the knowledge for yourself, but also transmit it to your friends, to your family members, and feel proud that you are part of the Department of Computer Science at Dev Sanskrit Vishavidyalaya, which always tries to give the best to you. So over to Dr. Naveen Pandeyji, please. Thank you very much, Gopal sir. So first of all, I would like to give the thanks to the Department of Computer Science, Dev Sanskrit University, respected Dr. Rajeshwari ma'am, and my friend Dr. Gopal Krishna Sharma sir, and all my dear faculty members, and my dear students. So as Gopal sir says, like कि planet में अगर हम लोग देखें तो it's like a unique subjects only was in देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसमें हमने योगिक साइंस, साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उसी ट्रेडिशंस को लेकर, उसी परंपरा को लेकर, उसी गुरु के ज्ञान को लेकर आज हम सभी आपके बीच उपस्थित हुए हैं।
तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ टिप्स, हेल्थ अवेयरनेस टिप्स। और ये जो सिचुएशन चल रही है वो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। सिनेरियो ऐसा है कि हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, हर व्यक्ति डरा हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये एक इस टाइम पर अचानक से चीजें बदलना, फिर इस प्रेजेंटेशन का होना भी, इसमें भी कुछ निश्चित रूप से ईश्वरीय जो है प्रेरणा है, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर फिर से उपस्थित हुए हैं। कि कंप्यूटर साइंस तो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ, जैसा गोपाल सर ने बताया कि हेल्थ सबसे पहले जरूरी है। पहला सुख है वो है निरोगी काया। तो निरोगी काया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसके बाद ही सारी चीजें आपकी चलेंगी। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने थोड़ा सा ये देखा कि किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपसे ही मैं चीजें जानने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, एक स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर दिखेगी। ये स्लाइड शो मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही होगी। एक ये पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, एक तरफ ह्यूमन है, एक तरफ मशीन है। मेरी आवाज आप सभी के पास जा रही होगी, तो आप लोग अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। एक तरफ ह्यूमन है, एक तरफ मशीन है, और हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं इस समय, वो हम कर रहे हैं अध्ययन किसका? मशीन का। कि मशीन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन कैसे दिखती है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, वो आउटपुट कैसे देती है, उसमें सेंसर कहाँ लगे हुए हैं। तो हम पूरा का पूरा अध्ययन तो किस पे कर रहे हैं? कंप्यूटर्स की मशीन्स पर हम लोग करते हैं। ठीक है, और एक तरफ आपका जो ह्यूमन का सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन का सिस्टम है, उसका भी कॉग्निशन है, उसका भी सेंसर है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या चीजें आती हैं? बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? हमें नॉलेज नहीं है। अगर जो बच्चा या जो व्यक्ति मशीन की नॉलेज रख रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सभी कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, तो अगर कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे? हम उसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है हमें। सॉफ्टवेयर में कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम उसको चेक करके ठीक कर लेते हैं। हार्डवेयर में अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसकी नॉलेज है तो उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। कुछ सेंसर्स बिगड़ गए हैं या कुछ कहीं भी प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक कर लेते हैं। और ये हम ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती हम ना करें, ताकि हमारी जो मशीन है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर सके। अब आप एक नया लैपटॉप लेकर आते हैं, आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बढ़िया से उसको कवर करेंगे, कहीं कोई डस्ट ना जाए, उसकी जो जो प्रिकॉशंस गाइडलाइन आपको मिलती है वो सब गाइडलाइन आप पढ़ लेते हैं। क्यों? ताकि हम उसकी केयर अच्छे से कर सकें। लेकिन आज की डेट में जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसका कारण क्या है? हेल्थ इश्यूज आने का कारण एक है, आज की डेट में अगर हम देखें तो लैक ऑफ नॉलेज। हम बाहर की जितनी मशीनें हैं उसको तो बहुत अच्छे तरीके से जानने, समझने, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, और आप वहां जाकर ट्रेनिंग भी लेते हैं, उसको सीखते भी हैं, और वहां से पास आउट होकर बाहर निकलते हैं।
लेकिन एक ऐसा मशीन, एक ऐसा सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन मशीन, ह्यूमन सिस्टम, मानव का शरीर, ह्यूमन बॉडी, हम कहीं ना कहीं उस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और ये कहकर इग्नोर करते हैं, नहीं मैं तो साइंस स्ट्रीम में, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए ये तो हमारा पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी थोड़ी है। क्यों भाई जरूरी नहीं है, शरीर तो आपका ही है। हम ये कह देते हैं ये तो इट्स पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टूडेंट, जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो जानेंगे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हम क्या करते हैं, जिस समय हम इसको पढ़ते हैं, जो एक बेसिक बॉडी का सिस्टम जो हम लोग को पढ़ाया जाता है हाई स्कूल में या 8th 9th 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं, उस समय तक उतनी समझ नहीं होती, और जब समझ आती है उस समय इसकी नॉलेज हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। और यही कारण है कि डिसीज या जो प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे सामने है वो इसी का नतीजा है। जब समझ नहीं थी तब पढ़ाई कर ली उसके बारे में, और जब समझ हुई, जब जरूरत हुई तो नॉलेज भूल गई, उसको अब बताने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, हम गलतियां करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपको पहले ही चीजें बता दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा उसको अगर कोई चीज बताई जाए तो वो गलती करेगा। हाँ, गलतियां भी एक होती है कि भाई लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं। दूसरा है बिहेवियर, आपकी आदत में है इसलिए आप बार बार गलती करते हैं। ठीक है, और कुछ होता है संस्कार, बस मान लीजिए वो चीजें आ गई आपके संस्कार में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो लास्ट के दो हैं उसकी संख्या कम है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलतियां हमेशा करते हैं और उसकी वजह से उनको समस्याएं होती हैं। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसका पर्पस यही है कि हम आपको, जो आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है वो हम थोड़ा सा आपको बताएं, हम आपको अवेयर करा दें ताकि आप ये गलती ना करें। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आज का वर्कशॉप है, हम लोग जो 40 मिनट तक डिस्कशन करेंगे इस विषय पर कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने मशीन के बारे में पता नहीं है। अच्छा, जो पढ़ते भी हैं बायोलॉजी वो डॉक्टर बन जाते हैं या कुछ बन जाते हैं, तो वो शेयर भी बहुत कम करते हैं, और करते हैं तो वो इतनी हाई फाई लैंग्वेज हो जाती है कि आपको समझ में भी नहीं आती। ये भी एक समस्या है। तो इसलिए इस अवेयरनेस प्रोग्राम का एक पर्पस और है कि इजी लैंग्वेज में, हमें डॉक्टर तो बनना नहीं है, हमें इतना समझना है कि हम अपने दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है या हमारा जो उस चीज को इतना समझ लें कि हमारा काम चलता रहे। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन एक हम अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से समझा सकें, चला सकें। जैसे कि एक बाइक आप अगर खरीदते हैं तो उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आप ले ही लेते हैं कि कहीं थोड़ा बहुत अगर टायर पंचर हो जाए तो कैसे बदलना है, बेसिक टूल्स तो आपके पास रहते ही हैं। ठीक है, छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम है तो आप खुद कर लें, और सबसे बड़ी बात है प्रिकॉशंस आप खुद कर लें कि कहीं कोई मशीनरी में दिक्कत ना है। तो बस यही अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस होना जरूरी है। इतनी अवेयरनेस अगर आपके पास आ गई तो ये जो ह्यूमन सिस्टम है आपका, जिसको हम लोग अपना शरीर कहते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगा लंबे समय तक। जिसको हम लोग कहते हैं शतायु, 100 वर्ष तक जीने की बात कही गई है हमारे आयुर्वेद में, योग में, वैदिक ग्रंथों में। ठीक है, और यही सब कंसेप्ट था जिसको ध्यान में रखकर देखा जाए तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर के साथ साथ योग, साइकोलॉजी, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक लेवल पे भी चीजों को समझा दिया हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग हमेशा देव संस्कृति विश्वविद्यालय को हमेशा जहां भी जाएंगे, जहां भी हैं, उसके लिए धन्यवाद देते रहते हैं। और ये वातावरण एक ऐसा यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि व्यक्ति अगर चाहे तो हर जगह कुछ न कुछ सीख सकता है, छोटी छोटी चीजें सीख सकता है। ये वातावरण का प्रभाव। तो सबसे पहले अब हम लोग देखें आगे कि प्रॉब्लम किस तरीके की होती है।
देखिए, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक तो प्रॉब्लम होती है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब ये हो गया कि ऐसी प्रॉब्लम जो सबसे पहले जो है आपके मन में आती है, आपके मन में आएगी और फिर धीरे धीरे वो आपके शरीर में आ जाती है। मन का शरीर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अभी हम आपसे बोले कि आप सबने पानी पूरी खाया कि नहीं खाया, गुलाब जामुन खाया कि नहीं खाया, छोले भटूरे, ठीक है, ऐसे ऐसे फूड बढ़िया डिलीशियस पिज्जा, इन सब का नाम ले लें तो क्या होता है, सुनने मात्र से ही आपके मुंह में लार आने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा सिक्रेशन होने लगता है। और एक अगर छोटी सी वीडियो आपको दिखा दी जाए जिसमें बहुत बढ़िया ग्रीनरी है, हरा भरा है, हरे बड़े पेड़ हैं, खिलता हुआ फूल है, तो आपका मन बिल्कुल शांत और प्रसन्न हो जाता है आपके सिर्फ देखने मात्र से, ठीक है। या अभी हम कोई एक ऐसी स्टोरी सुनाने लगे जिसको सुनने मात्र से आपके मन में क्या हो जाएगा, बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। डर की स्टोरी होगी तो डर लगेगा, हैप्पीनेस की होगी तो आपको हैप्पीनेस होने लगेगी, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि दो तरीके की प्रॉब्लम्स बेसिकली होती हैं, या दो तरीके की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, जिसमें से होता है पहला साइकोसोमैटिक। आज की डेट में अगर हम लोग देखें कोविड-19 सिनेरियो में, तो अधिकतर लोग डर के मारे बीमार पड़ रहे हैं। थोड़ा सा वायरल सिम्टम भी हुआ तो इतना डर गए हैं कि उनको लगता है कि बस कोविड हो ही गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके मन में चल रहा है ना विचार, साइकोसोमैटिक। तो क्या होगा, मन में विचार होने से धीरे धीरे वो आपके बॉडी में वो सिम्टम्स आने ही लगेंगे। अब अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे सिम्टम्स आएंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरे सिम्टम्स आएंगे। तो इसलिए पहले तो आप लोग डरना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना डरेंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। तो पहली टिप्स तो आपको यहीं से मिल जाती है कि आप डरना छोड़ दें और हमेशा अपने मनोबल को स्ट्रांग रखें। और इसीलिए ग्रंथों में कहा जाता है स्वाध्याय करिए, अखंड ज्योति पढ़िए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए जहां से आपको मोटिवेशन मिल सके, लेक्चर सुनिए। साइकोसोमैटिक पे तो एक इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति लिया गया और किसी कारणवश उसको जब जेल जाना पड़ा तो वहां पर उसी जेल में ही उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति था और उसको ये बोला गया कि देखो आपको सजा तो मिलेगी और आपने ऐसा काम किया है कि आपको सजा, डेथ वारंट है, आपको हैंग कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग, चूंकि हमारे पास वैज्ञानिकों की एक टीम आई हुई है, तो आपको डेथ नहीं, मतलब हैंग नहीं करेंगे, डेथ दी जाएगी। लेकिन आपको किस तरीके से दी जाएगी? स्नेक बाइट करा देंगे, उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। तो अब क्या हुआ उसको कि जब उसको लिटा दिया गया, कपड़ा ओढ़ा दिया गया और ताकि वो कुछ देख ना सके, और उसके पैर के अंगूठे में केवल एक निडिल चुभाई गई थी। उसको ये बताया गया कि अब आपको स्नेक बाइट कराने जा रहे हैं, तो निडिल चुभा दी गई। बस इतने से क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है वो आदमी मर गया। अब जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें रियल में स्नेक का जो पॉइजन होता है वो पाया भी गया। अब बताइए, तो इतना बड़ा इफेक्ट होता है साइकोसोमैटिक का। बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने सोच लिया, उसको बता दिया गया था पहले कि बस आपको स्नेक बाइट होनी है। तो अब वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि अब वो स्नेक बाइट है कि क्या है, किस निडिल उसको चुभाई जा रही है। तो बॉडी में इतना बड़ा रिएक्शन होता है जब हम मात्र सोचते हैं, तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो आज की डेट में आप देख लीजिए, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये सब स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं। आपके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है हर चीज को लेकर, जिसकी वजह से आज की डेट में आपके सामने दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज तक हो जा रही है, सोचिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, हमेशा उज्जवल भविष्य के लिए सोचिए। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर है। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य की बात हम लोग करते हैं, तो आपको विश्वास रखना है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करना है। मान लीजिए कुछ हो भी गया है तो भी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो साइकोसोमैटिक। दूसरी जो प्रॉब्लम जो है आती है, सोमैटोसाइकिक होती है, ये रेयर होती है। सोमैटोसाइकिक, सोमैटोसाइकिक का मतलब ये हुआ कि पहले प्रॉब्लम आती है आपके शरीर में, फिजिकल बॉडी में, और फिर वो मन को प्रभावित करती है। जैसे कोई बहुत लंबे समय से बीमार अगर हो गया है, लंबे समय से बीमार चला आ रहा है, तो वो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। क्यों? क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा है, अपनी दैनिक दिनचर्या ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम है। और वो धीरे धीरे सोचता रहेगा कि सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, सब लोगों को दिक्कत हो रही मेरी वजह से, और हम पड़े हैं, इससे अच्छा तो ना रहे। तो क्या हुआ, एक फीलिंग आ गई उसके अंतर्गत, मन में फीलिंग आ गई, और धीरे धीरे वही फीलिंग डिप्रेशन में चली जाती है, और इस वजह से कई सारी डिसीज होने लगती है। तो उसको कहते हैं सोमैटोसाइकिक। ऐसा जो है रेयर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का पैर में दिक्कत आ गई, किसी के हाथ में दिक्कत आ गई, या किसी को ऐसी क्रॉनिक डिसीज हो गई कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस तरीके की समस्याएं होती हैं। लेकिन अधिकतर जो आज की डेट में, अगर 21वीं सदी की बात करें, या जो है आज का जो इन्वायरमेंट है, वो सब साइकोसोमैटिक की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसको अपने को ठीक करना है, इसके लिए आप अवेयर हो जाइए, अपने विचार को शुद्ध रखिए। दूसरी बात जो है, हम लोगों को जो समझने की बात है, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जब हमें अपने शरीर, जो आपका सिस्टम है, जो इतना कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, हम लोग इसको देखें, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीनरी कहते हैं। साइंस अभी भी इसको कॉपी करने की कोशिश में लगा हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी तो हम लोग AI, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, इस तरफ की तरफ देखें तो अभी तो केवल कुछ चीजें हम लोग इसमें कर रहे हैं। रोबोटिक आर्म्स बना लिए, कंप्यूटर विजन कैमरा बना लिया हमने, मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ANN की तरफ जाकर उसके सेंसिंग, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं इसमें, बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स हैं अभी, तो काफी काम है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने मशीन को पहले समझना है कि ये बना कैसे। अगर ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारी गलतियां कम कर देंगे। जब आप गलतियां कम कर देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने सिस्टम दिख रहे हैं आप लोगों को। एक है आपका, ये देखिए, जहां से आप सांस लेते हैं, ये कुछ आपका नर्वस सिस्टम है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये आप देख लीजिए जहां पर ग्लैंड्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ब्लड फैला हुआ है, और इसमें हार्ट है, ठीक है। इस तरीके से देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, इधर भी लंग्स हैं, कुछ और सिस्टम है। कुल मिलाकर इस तरीके से अलग अलग इसमें सिस्टम बने हुए हैं। मतलब कि आपका शरीर केवल एक नहीं है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस एक साथ एक समय में काम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं,
तब हम जाकर आज अगर हम बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है, कोई ना कोई हाथ उठाते हैं तब सिस्टम है, आप सोचते हैं कुछ प्रोसेस करते हैं तब कोई ना कोई सिस्टम है। कितनी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जितनी भी चीजें अभी तो मैंने आपको दिखाई, ये सब शारीरिक फिजिकल लेवल पर हैं। और जब सारे सिस्टम सही काम करते हैं तो हम उसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्थ, गुड हेल्थ। ठीक है। और साथ में जो आपका थॉट प्रोसेस है, मन है, जो कि आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गवर्न होता है, जब ये भी ठीक हो जाता है, आपका मन, आत्मा, इंद्रियां, सेंसर सारे, तो हम कहते हैं ये पूर्ण स्वस्थ है। तो इसीलिए आयुर्वेद में बताया भी गया है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिया स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। आप देख लीजिए, जैसे कि जिसका मल धातु, अग्नि, और साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो उसमें जुड़ी है वो है प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्रियां। ये अगर प्रसन्न है तब जाकर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है। और इन सारे सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हम देखें, वैसे तो सारे ही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जिस चीज की ज्यादा जरूरत आप लोगों को है, उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि गलतियां वहीं से होती हैं, वहां से गलतियां होती हैं, तो वो आपके सारे प्रोसेस, सभी सिस्टम को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम है आपके सामने, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। हड्डियां जो आपको बेस प्रोवाइड करा रही हैं, आपका आधार है, मसल्स उसके ऊपर है जो आपको दिखती है, फिर ये सब अंदर के ऑर्गन्स है, अंदर के सिस्टम। ठीक है। जिसको आप महसूस करते हैं, ये दो हैं, हड्डी आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो ऊपर से आपको दिखता है वो है मसल्स। ठीक है। बाकी चीजें जो है आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाती है। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इसको समझना बहुत जरूरी है, और मैं तो ये कहता हूं इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो खाता है। जब वो खाएगा कुछ भी तो वहीं से न्यूट्रिशंस पूरे बॉडी को मिलेंगे, और जब न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी आपकी पूरा शरीर काम करेगा, नहीं तो सब बेकार है। आपको खाना, पानी, हवा ना मिले तो सिस्टम डाई हो जाएगा। ठीक है। और यहीं से आपको एनर्जी मिलती है। जब आपको एनर्जी मिलती है तो फिर बाकी के सारे काम आपके होते हैं, चाहे वो थॉट प्रोसेसिंग का काम हो, डिसीजन लेने का काम हो, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी हो, कोई मेंटल एक्टिविटी करनी हो, हर कुछ, सब कुछ डिपेंड कहाँ करता है? आपका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जो फूड ले रहे हैं। तो ये सिस्टम अगर गड़बड़ाया तो बाकी के सिस्टम भी धीरे धीरे इफेक्टिव होने लगेंगे, गड़बड़ होने लगेंगे। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो जो है, सबसे पहले हम लोग जो भी कुछ भी खाते हैं वो मुंह में डालते हैं। ठीक है। मुंह में डाला हम लोगों ने खाना, फिर वहां से वो एक फूड नली है जिसको हम लोग कहते हैं इसोफेगस, वहां पे खाना जाता है, फिर एक स्टोमक है जहां पर खाना रखा रहता है। ठीक है। ये इमेज अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाना आपने खाया, जो भी कुछ आपने मुंह में रखा, 4 से 8 सेकंड में वो इसोफेगस मतलब फूड नली जो है आपकी, फूड पाइप, वहां होते हुए स्टोमक में आ जाता है,
और स्टोमक में वो कम से कम रहता है 2 से 4 घंटे तक। ठीक है, 2 से 4 घंटे तक यहाँ पर वो बना रहता है। उसके बाद फिर ये जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी है, यहाँ पर खाना जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना, जो भी आपने खाया, जो लिक्विड हुआ, जो भी जैसा भी प्रोसेस हुई, वो जाकर इकट्ठा हो जाता है और कम से कम नहीं तो 10 घंटे से सेवरल डेज, मतलब हफ्ते, 10 दिन, साल भर भी यहाँ रुक सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यही चीज आपको समझनी है। जो आपको समझना है वो यही समझना है कि आपने खाना खाया तो देखिए 3 चीज, एक तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, 3 चीजें हैं, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे ज्यादा देर जो रुक रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रुक रहा है। तो अगर आप लोग से ही मैं सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछूं कि कोई भी चीज आप अगर कहीं रख दीजिए लंबे समय तक के लिए, क्या होगा? सड़ने लगेगा, फर्मेंटेशन होने लगता है, उसमें धीरे धीरे कीड़े हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? सड़ने गलने जैसी चीजें आ जाएंगी, गैस बन जाएगी, गैस बनेगी, फिर क्या होगा? कीड़े और निकलेंगे, ये सब चीजें होने लगती हैं। तो वही चीजें आप समझिए कि यहां भी हो रही हैं। ये भी तो, यहां पे भी तो कोई चीज रुक रही है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो पहली समस्या तो यहां से आ जाती है। दूसरा क्या है? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कोई बताएगा मुझे? किसी को अगर कुछ आइडिया अगर हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए तो 22 फीट के आसपास होती है, ठीक है, 22 फीट, 7 मीटर के आसपास आप मान के चलिए, 7 मीटर, इतना लंबा, छोटे से जगह पर बिल्कुल सिकुड़ के रखी हुई है। तो यहां पे भी क्या होता है, धीरे धीरे अगर मसल्स टाइट होना चालू हो गई तो हाथों को काटना भी पड़ जाता है। और ये प्रॉब्लम आती क्यों है? अब इस चीज को समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, हम सब बिलोंग करते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड से, ठीक है, प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। हमारी फील्ड से ज्यादा दिक्कत तो एनिमेशन वालों को है, उनको तो 8-8 घंटे बैठने पड़ते हैं लगातार, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। समस्या वहां आती है, दिक्कत उसको आएगी जो बैठा हुआ है 2-2, 3-3 घंटे कांस्टेंट और पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप पानी पीते जाएंगे तो लिक्विड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाएगा। तो सबसे पहला अगर हेल्थ की टिप्स अगर आप लोगों को जाननी है तो पानी पीजिए, ठीक है, पानी पीना बहुत जरूरी है। 8 से 10 गिलास, 12 गिलास दिन भर में आप पी सकते हैं। 5 लीटर, 3 से 5 लीटर तक आप पानी आपको रोज पीना चाहिए। और अगर आप कहीं लगातार बैठे हुए हैं तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए। पानी की बोतल लेकर आप बैठिए और हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। क्या होगा? इससे पानी की कमी नहीं होगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जो भी आपने खाया 2 घंटे 3 घंटे तक स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर उसको कम से कम 5 से 6 घंटे लगे और पानी नहीं मिला,
तो जो भी लिक्विड आइटम था धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा। हार्ड होने लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी, वो मूव नहीं करेगा आगे। लिक्विड है तो मूव कर जाएगा, लिक्विड नहीं हो रहा है तो वो वॉल्स में चिपकने लगेगा, रुक जाएगा, और उसकी वजह से बॉडी में हीट बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो भी जान लीजिए। ये पिक्चर आपके सामने है, आप इसको देखिए। ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने है। इसमें देखिए कि स्टोमक में क्या हो रहा है। ये केवल जो भी हम खाते हैं वो टूटता है, बड़े टुकड़े होंगे तो छोटे टुकड़ों में टूटेगा। देखिए यहां से बड़े टुकड़े आ रहे हैं, यहां से देखिए छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, टुकड़े छोटे हो रहे हैं, धीरे 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 और छोटा होता चला गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस हो रही है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। और ये एब्जॉर्प्शन जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है ब्लड में। और इसीलिए, और ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड पूरे सब शरीर में सप्लाई हो रहा है। तो अगर हीट यहां जनरेट हुई, कोई भी प्रॉब्लम यहां हुई, तो आपके ब्लड में भी दिक्कत आएगी। न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम आनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और जो आपका स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन का है वहां फर्मेंटेशन होता है, और यहां से भी बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है। इसलिए इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को, ये देखिए पूरा एक बड़ा अच्छा सा ट्रैक है जिसको आपको साफ रखना बहुत जरूरी है। और ये साफ करने के लिए इसका एक बहुत अच्छा नेचुरल तरीका है, पानी पीजिए। ठीक है, तो आपको खुद भी पीना है और लोगों को भी ये चीजें आपको शेयर करनी है, बताना है, समझाना है। ये देखिए अच्छी प्रोसेस आपको, फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, और यहां से एब्जॉर्प्शन हुआ, न्यूट्रिशन जितने भी हैं वो एब्जॉर्ब होकर, ये देखिए, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल होती है उसमें छोटे छोटे विल्ली होती हैं, और जो कि कनेक्टेड होती हैं ब्लड स्ट्रीम से। तो इसीलिए डायरेक्टली यहां से चीजें ब्लड में जाती हैं, और आपके पूरे बॉडी में जो है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो सब आपके बॉडी में पहुंच जाता है, सभी सेल्स में। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग चूंकि जिस फील्ड से हैं, तो उस फील्ड में बैठने का काम ज्यादा होता है, चाहे हम डिजाइनिंग करें, डेवलपिंग करें, कुछ भी। तो इसलिए हम लोगों को वाटर इनटेक अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या करें, और खाने पीने में भी हम लोगों को इस तरीके की चीजें खानी चाहिए कि ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इजी वे में वो डाइजेस्ट हो सके। इस तरीके की चीजें हम लोगों को खानी चाहिए। ठीक है, समय पे आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, समय पर लंच लेना चाहिए, और टाइम पर आपको डिनर कर लेना चाहिए। और बहुत ज्यादा ऑयली चीजें या इस तरीके की चीजें आज की डेट में हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जो कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करे जिसकी वजह से गैस या एसिड जनरेट हो जाए या भूख ही ना लगे। ठीक है, अगर स्टोमक में प्रॉब्लम होगी आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। इंटेस्टाइन में अगर कहीं इस तरीके की ब्लॉकेज होगी तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। ठीक है, और यही कारण है कि साल में एटलीस्ट 2 बार हम लोगों को लॉन्ग क्लिंजिंग कर लेनी चाहिए, कम से कम बस 10-12 ग्लास पानी पीकर। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन आप सभी जानते होंगे, बहुत सिंपल है। इतना करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा ट्रैक जो है आपका ये वाला क्लीन हो जाएगा, पूरा ट्रैक क्लीन हो जाएगा।
साल में 2 बार अगर आपने कर लिया तो आपको निश्चित है कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी WHO की भी गाइडलाइन आ गई और भी लोग गाइडलाइन दे रहे हैं कि अभी ऐसा भोजन करिए जो ज्यादा ऑयली ना हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, लिक्विड डाइट हो। ठीक है, नारियल पानी पीजिए, खीरा खा सकते हैं। ठीक है, पपीता आप ले सकते हैं। ये सब ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं भोजन को पचाने में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अपने, और जल्दी सोना और जल्दी उठने की प्रक्रिया भी आप डाल दीजिए। सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हैं, एक जो बड़ा वैसा ट्रेंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में चल रहा है कि हम तो बस रात भर करेंगे, सुबह सोएंगे, नहीं, इससे आप ज्यादा दिन तक फील्ड में नहीं रह पाएंगे। इंडस्ट्री में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपनी दिनचर्या थोड़ी सी ठीक रखनी पड़ेगी। ठीक है, शिफ्ट हो चुकी है, मैं मान सकता हूं, इस समय शिफ्टिंग होती है, डे एंड नाइट शिफ्ट, उसके बावजूद भी आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं इन सब चीजों को रखकर। ठीक है, पानी पीजिए अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये दोनों देखिए सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा आज की डेट में देखा जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहा है, आप सभी को पता ही है, हर आदमी परेशान है। ठीक है, हमें एक्चुअली अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग भी घबरा जाते हैं। तो अगर हमें की नॉलेज होगी तो हम इजिली छोटी छोटी टेक्निक्स का यूज करके हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई आपको सिम्टम इस तरीके के आ भी रहे हैं, ठीक है, तो भी आप ये हिम्मत रखिए कि हाँ ये तो ठीक हो सकता है, और उसके लिए हम लोग आज थोड़ा सा आपको और चीजें बता देंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। ये देखिए लंग्स हैं आपके, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपके अंदर है। ये जो आपका एरिया है, ये वाला चेस्ट का एरिया है, रिब्स केस आप लोग इसको फील भी कर सकते हैं। ये जो रिब्स हैं, हड्डी, ये हड्डी का ढांचा आप फील कर सकते हैं अपने हाथ से टच करके, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, और अंदर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर रिब्स केस के अंदर जो है ये चीजें, दो लंग्स इस तरीके के शेप में अंदर है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर लगता है जैसे कि ट्री स्ट्रक्चर टाइप से है। ये मतलब एक मेन स्ट्रीम है जहां से आप जब नाक से श्वास लेते हैं तो हवा इसके अंतर्गत आती है, और यहाँ से फिर दो पाइप हैं, दोनों तरफ चली जाती है, और फिर इसमें छोटे छोटे और पाइप निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर कुछ बंद हो जाए तो, ये ब्लॉक हो जाए तो ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? हवा नहीं जाएगी अंदर, हवा नहीं अंदर जाएगी तो ये दोनों लोब आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा अगर यहाँ देखिए इस पिक्चर में भी, यहाँ से श्वास लेते हैं आप नोज से या माउथ से, तो श्वास यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद दो में डिवाइड हो जाती है। तो अगर यहाँ मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई इस एरिया में तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो चीज बनी हुई है सेफ्टी के लिए वही आपके लिए इनसिक्योरिटी फील करा देती है। जैसे कि पाइप के अंदर जो होता है म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस, जो कि कोई डस्ट अंदर ना जा सके इसलिए वो होता है। लेकिन जब म्यूकस ही एक्सेस होने लगेगा तो क्या होगा? तो वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जो पाइप का डायामीटर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पाइप्स आपको ये छोटी छोटी दिख रही हैं, इसके लास्ट में आप देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। 300 to 600 मिलियन जो है एल्वुलाई आपके लंग्स में होते हैं।
आप सोच लीजिए कितनी छोटे छोटे संख्या है, बिल्कुल जैसे ग्रेप्स का शेप आपको दिख रहा है, वो रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों ही ब्लड एक्चुअली। एक में प्योर ऑक्सीजन है, एक में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जब आप श्वास लेते हैं तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ जाती है और वहां से वो पूरे ब्लड में मिलती है, और ब्लड में मिलते ही वो पूरे बॉडी में इसके माध्यम से, हार्ट के माध्यम से चली जाती है। हार्ट एक्चुअली पंपिंग सेट है, पंप करता है, तो ताकि जो है पूरे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक सप्लाई हो सके, बस इतना काम है, पंपिंग मशीन है वो। ठीक है, और जब आप पूरे बॉडी में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी बाहर इसी के माध्यम से निकल जाता है, सांस के माध्यम से। तो ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। ये देख लीजिए, ये CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इस तरीके से चेंज होता रहता है। और जब ये चेंज की प्रोसेस होती रहती है इस तरीके से, तो आपका सिस्टम चलता रहता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये तो सबको ही पता है कि हमने श्वास लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, श्वास छोड़ा, बाहर आ गई, लेकिन हो कैसे रहा है? एल्वोलाई कर रहे हैं, एल्वोलस जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पर ये एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। और अगर यही एक्सचेंज की प्रोसेस होना बंद हो जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो एक जो कमी, एक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि उथली श्वास लेते हैं, श्वास भी पूरी नहीं लेते हैं। और कई बार तो ये भी कह देते हैं कि हमें सांस लेने की फुर्सत कहाँ है। ठीक है, तो श्वास लेने की फुर्सत नहीं तो मत लीजिए, नहीं लेंगे तो धीरे से चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो कुल मिलाकर श्वास लेने की टेक्निक्स आपको सीखनी है। लंबी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, ताकि ये जो बैलून्स आपको दिख रहे हैं ये पूरा फुल हो जाए, भर जाए। नहीं तो क्या होगा? भरेगा ही नहीं, तो सिकुड़ने लगेंगे धीरे धीरे। जिस चीज का यूज नहीं है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी। बैलून ही है ये, छोटे से बैलून है। हवा जाएगी तो फूल जाएगा, हवा नहीं जाएगी तो नहीं फूलेगा, नहीं फूलेगा तो श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक कर जाएगा तो आपकी कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। तो एक व्यक्ति ऐसा जो रोज दौड़ लगाता है, उसने अपना स्टेमिना और लंग्स की कैपेसिटी एक्सपेंड कर रखा है, और एक व्यक्ति जो नहीं दौड़ता है, उसको दौड़ा दिया जाए तो उसकी सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? लंबी गहरी श्वास लेनी चाहिए, यौगिक ब्रीदिंग करनी चाहिए। यौगिक ब्रीदिंग कैसे करेंगे? जहां पे भी आप लोग बैठे हैं बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी कर लें, या लेट जाएं, आप लेट के भी ये चीज कर सकते हैं। श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास लेते जाइए, अंदर तक देर तक श्वास लेकर रखिए, और फिर बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी डीप ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो गई, ये आदत अगर आपने बना ली, तो हमेशा आपको, सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी फील होती रहेगी। आपका लंग्स का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, और लंग्स का फंक्शन अगर अच्छे तरीके से चलेगा तो क्या होगा? इम्यूनिटी आपकी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो जो बाहर के वायरसेस हैं, जो भी हैं, वो कम इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लंबी गहरी यौगिक ब्रीदिंग करना। श्वास लेते जाइए, श्वास छोड़िए। बहुत बढ़िया। लास्ट के 5-6 मिनट हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप लोगों को वीडियो ऑन करना पड़ेगा।
आप लोग जिस भी कंडीशन में हैं उसके लिए थोड़ा सा रेडी हो जाइएगा। देखिए कुछ चीजें आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पिक्चर के माध्यम से। ये देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये जो आपका ब्रोंकी है, मतलब ये जो पाइप यहाँ आई हुई है, ये तो हेल्दी पाइप है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल खुली हुई है। लेकिन क्या हुआ, ये अनहेल्दी है। धीरे धीरे क्या हुआ, म्यूकस एक्स्ट्रा हो गया, फूल गया, तो जगह कितनी बची, श्रिंक कर गई, तो कम ऑक्सीजन आप अंदर खींच पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए कि ये जो एल्वोलाई हैं आपके, वो ये हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, और ये देखिए कैसे किस तरीके से सिकुड़े हुए हैं, अंदर प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है, दिक्कतें। ये सब दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है। पानी पीना नहीं है, श्वास ढंग से लेनी नहीं है, खाना क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको बता दिया, पानी पीजिए, जो इजिली डाइजेस्टेबल चीज हो वो खाइए, समय पे खाइए, बार बार मत खाते रहिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, कम से कम 30 से 40 मिनट बाद पानी पीजिए अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो गुनगुना पानी का सेवन करिए। गर्मी बढ़ रही है तो ठंडे पानी का सेवन मत करिए, या तो नॉर्मल पानी पीजिए। फ्रिज की ठंडी बोतलें जो है कुछ दिनों के लिए आप हटा दीजिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल है और ये कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम है। आगे देखिए, और इसी चीज को मैं दिखा रहा हूं, नॉर्मल लंग्स, अस्थमैटिक लंग्स। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जब आपका ट्रैक ही गड़बड़ हो गया, तब तो वो एल्वुलाई और फिर जो गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस, फिर जो वहां से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पूरा सिस्टम सब इफेक्टिव हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, और अफेक्ट हो गया तो दिक्कत। अब आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ गया, सारी चीजें आपको खुद ही क्लियर हो गई। ठीक है, और एक चीज और इसमें आपको जो जोड़ने की जरूरत है वो ये है कि चूंकि आप बाहर की बॉडी है, चलिए आपको दिख रही, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स हैं, ये भी मसल्स से बने हुए, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं, और एक कार्डियक मसल है जिसका हार्ट बनता है। ठीक है, तो अब चूंकि मसल्स हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें इलास्टिसिटी है, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी खिंचेगी बाहर से, तो अंदर के ऑर्गन्स में भी थोड़ा थोड़ा मसाज होगी। तो जब मसाज होगी तो इन मसल्स की इलास्टिसिटी भी बनी रहेगी, तो इनके फंक्शंस भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम नहीं तो 5 से 6 राउंड सूर्य नमस्कार तो कर ही लीजिए। आप लोग जिस उम्र में हैं, आप लोग को निश्चित है कि शुरुआत 5-6 राउंड सूर्य नमस्कार से कर लेनी चाहिए, और उसको बढ़ाते हुए 10 से 12 करना चाहिए। और इतना करने के लिए आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, और 5 मिनट आप अगर जो है प्राणायाम में दे देते हैं तो आपका सब कुछ सही हो गया। अगर आप टोटल 15 मिनट दे देते हैं तो भी सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर देना है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपने सिस्टम को संभाल लिया, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप समझ में आ गया आपको कहाँ दिक्कत आती है, आपको ये समझ में आ गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके की दिक्कत आती है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका न्यूरॉन सिस्टम भी जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। आपकी ब्रीदिंग अगर अच्छी हो गई, डीप ब्रीदिंग हो गई, प्रॉपर ब्रीदिंग आप अगर ले रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको समस्याएं आती हैं, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते, वो सब भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
कई लोगों को फ्रस्ट्रेशन की दिक्कत आ जाती है, ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए ये सब चीजें आपको बताई जा रही हैं क्योंकि ये जब आप फील्ड में जाते हैं, काम करेंगे, इंडस्ट्री में प्रेशर आएगा, तो उस समय यही सब चीजें आपको काम आएंगी, किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो अब मैं शेयरिंग बंद करता हूं 5 मिनट के लिए। जो है आप लोग ठीक है रेडी हो जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। इसके लिए कमर गर्दन सीधी रखेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे। जो वीडियो कैमरा ऑन कर सके वो कर सकते हैं, ताकि यहां से हमें दिख जाए। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ गिनती के साथ में करवाऊं, जैसे मैं अगर 1 to 10 तक गिनती करता हूं तो आपको 10 तक धीरे धीरे श्वास लेते जाना है उसी काउंटिंग में। ठीक है, 1, थोड़ा सा श्वास लीजिएगा, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रोक के रखिए थोड़ी देर। और जब मैं आपको बोलूंगा कि श्वास छोड़िए तो धीरे धीरे छोड़िएगा विथ काउंटिंग। श्वास छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जब काउंटिंग स्टार्ट की तो हो सकता है कुछ लोग 5 काउंट में ही पूरा फुल हो गए, अब उसके ऊपर ही नहीं जा रहे। कुछ लोगों ने एक्सेल करते समय हो सकता है कि पहले ही छोड़ दिया हो, या हो सकता है कि 1 to 3 में ही पूरा एक्सेल कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम यहाँ प्राणायाम की बात भी नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है एक्चुअली। उसके सबसे पहले प्राइमरी प्रैक्टिस ही आदमी को करनी चाहिए और उसी से बहुत कुछ फायदा मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो आप अनुलोम विलोम अगर कर सकते हैं कि मतलब यहां से लेफ्ट से श्वास लिया, थोड़ी देर रोक के रखे और राइट से छोड़ दिया, और राइट से फिर से श्वास लिया, थोड़ी देर रोक कर रखेंगे जब तक आप रोक सकते हैं, और फिर लेफ्ट से छोड़ दिया। ये आप कर लीजिए 5 मिनट, पर्याप्त है इतना। लेकिन इसके पहले ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको अपने हैबिट में डालना है। ये अगर आ गया मतलब सब कुछ आ जाएगा, फिर प्राणायाम भी इफेक्टिव होगा। और यही रीजन है कि जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। कारण यही है कि राइट प्रोसेस ही नहीं पता है। सीख लिया कहीं से, ठीक है अनुलोम विलोम करना है, कर रहे हैं, करना कैसे है वो गलत करते हैं। प्राइमरी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, रेगुलर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज की जो ये वर्कशॉप थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस टिप्स, तो इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने आज सीखी। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि साइकोसोमेटिक, सोमैटोसाइकिक, क्लियर, हमारी थिंकिंग अगर पॉजिटिव हो गई, हम कॉन्फिडेंस में हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो ठीक हो जाएगी। पहली चीज हमने सीख ली। उसके लिए स्वाध्याय करिए, आप लोग अच्छी किताबें पढ़िए, जो है अध्ययन करिए, विचारों को देखिए। उसके बाद हमने डाइजेस्ट जितने भी सिस्टम है, मशीन्स, उसके बारे में देखा
और फिर ये देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हमारा काम करता है, क्या होता है अंदर जब आप खाना खाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमने आपको एक बेसिक चीज बता दी कि आप पानी पीजिए, क्योंकि वो उससे काफी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। गुनगुना पानी पीते जाइए, और हो सके तो आप ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। और हेल्दी डाइट लीजिए जो इजिली डाइजेस्टेबल हो। सीजनल फ्रूट्स खाइए, जैसे कि अभी अवेलेबल है, पपीता अवेलेबल है, वाटरमेलन अवेलेबल है, खीरा अवेलेबल है, ये सब खा सकते हैं। ठीक है, नारियल पानी जो एफर्ट कर सकता है नारियल पानी पी ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा है। खिचड़ी खाइए हफ्ते में 1 दिन, बहुत जरूरी है। लिक्विड मिर्च मसाले वाली चीजें आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इस सिनेरियो के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप ये कितना कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुलसी के पत्ते मिल जाए, गिलोय मिल जाए, तो हफ्ते में 2 बार ये भी आप ले सकते हैं। बार बार गिलोय पीना भी ठीक नहीं है, वो बॉडी में हीट जनरेट कर देती है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया था काफी लोगों को गिलोय से, और लोगों को बहुत फायदा मिला है। ठीक है, तो गिलोय का सेवन कैसे क्या करना है वो भी मैं, अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, उसको पढ़िएगा अच्छे से डिटेल में, बहुत बढ़िया है। कब करना है, कैसे करना है, कब नहीं करना है, वो चीज भी है। और दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जिसको भी कोविड हो रहा है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही ब्लॉक करता है। एक्सेस म्यूकस जनरेट होगा, सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये सीन ही क्रिएट ना हो उसके पहले ही आप जो है प्राणायाम करते जाइए, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते जाइए, एक्सरसाइज करिए। मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में आपको बताया, 5 राउंड 10 राउंड कर सकते हैं आप। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल फिट रहेंगे, डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लंबे समय के लिए आप रुक सकते हैं। तो आज की वर्कशॉप हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग ले लेंगे 2 से 4 मिनट में, आप लोग टाइप कर सकते हैं। So I think before we end the session by Shanti Part, first of all, we request you to kindly fill the form shared by ma'am. And meanwhile, we would like to express our gratitude to Naveen sir for being so humble and so kind to all of us for the such informative session, which is very relevant for today's time. So I think the most important thing for all of us is to understand the fundamental which he tried to share, that we all need to uh, take care of our own self by our own self, because this is the high time. And if we realize it by now that we actually have to take care of ourselves, only then everything around us will be good or will be fine. So we are very much thankful to Naveen sir for such a wonderful session. Thank you, sir. Thank you, and we also want to express our gratitude to Honorable HOD ma'am who gave us an opportunity. All the students, I think the students have taken the right gist of the whole session, and they will spread it not only to their friends, to their families, but they will also try to spread the thought to as many as people as you can. So, dear students, in the feedback form also you have something to share. So please share it, because that is related to that. You like this session very much. What are other topics in which you would like to listen? So definitely it will help us. So thank you everyone. Thank you once again. And if you do have any questions, you can send directly to sir, or you can send it to us also, so that we can compile, and in between we can have such sessions so that we can take care of yourself. Thank you. Thank you once again. Thank you. राजेश्वरी मैम कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच नवीन सर, आपने काफी अच्छा
इंसाइट दिया है और रियल में स्टूडेंट्स और हम सब लोग काफ़ी मतलब इससे काफ़ी बेनिफिट मिला है हम सबको और यही चीज़ों की अभी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की ही ज़रूरत है और जो बीमार नहीं है एटलीस्ट वो लोग पॉजिटिविटी बनाए रखे और जो है उनको पॉजिटिव करने का काम हम लोगों का है। तो ये सर बहुत ही सराहनीय आपका प्रयास रहा और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी हम लोगों को भी मतलब एड ऑन हुआ हमारे नॉलेज में भी। तो थैंक यू सो मच नवीन सर। सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी इस तरीके की जो भी आपको सजेशंस एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा आप लोग बना सकते हो। और अभी देखो सारी चीजें फॉर्मेलिटी है। आज तो मैं खुद सुबह से इतनी नर्वस थी कि बहुत कुछ ऐसे न्यूज़ मिल रहे हैं, अपनी स्टूडेंट्स के फैमिली में कुछ कुछ न्यूज़ आ रही है, तो उन सबको मतलब हम लोगों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखना है। आप लोग जो लोग जुड़े हैं वो टेस्ट क्लासेस उन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें अभी फॉर्मेलिटी में हो रही है और हम लोग भी इंसानी हैं, सब लोगों की कंडीशंस हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग जो कर रहे हो उसमें सबसे अच्छा करिए और अपने आसपास और ऐसी जो भी कंडीशन अभी बनी हुई है उसमें पूरा सहयोग करिए। यहाँ भी शायद 2 दिन का लॉकडाउन है, मंडे और संडे और मंडे को, तो शायद क्लासेस में कुछ असर आए। मंडे को क्लासेस जो लोग घर से ले रहे हैं वो तो ले ही पाएंगे, लेकिन थोड़ा कुछ वो हो सकता है, तो मंडे को शायद छुट्टी रहे। तो बस यही पॉजिटिव चीज़ें। थैंक यू सो मच नवीन सर, आपने बहुत कुछ बता दिया इसमें। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। Once again, thank you, Naveen sir, because all of a sudden we have to plan because Pratyush Srivastava was going to take a Python session today, but due to his health issues, he was unable to join us. So I think it gave us a chance to present this topic related to health. A very important information for all the students that on 27th of April 2021, we got to know that a group of students are planning to have a digital DPLB on Hanuman Jayanti, and this will be for the prayer for humanity for world peace. We got an information somewhere through our official handle. So I think all of the students must positively try to participate, because on 27th April in the evening 7 to 8 p.m. on Zoom app they are performing digital DPL. So it is the initiative of student. You can see it on DSVD official Insta and Facebook. This information has published. So I think for world peace we need to be together. So right now also before doing Shanti Path, we fold our hands. हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे अपने साथी, हमारे अपने परिजन, हमारे अपने स्टूडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स या दुनिया में कहीं भी कोई जो है जो इस दुख की समय में विपत्ति से जूझ रहा है, हम सबके लिए प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सर्वत्र शांति हो, सभी निरोगी हो। इस भावना के साथ शांति पाठ साथ साथ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी स्वस्थ रहिए, अपनों को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन लीव। थैंक यू।